غلام مولانی مشکل کشا کے ان کے گھر سے یہ سلسلہ شروع ہوا، آتا آتا حوث پاک تک آیا، پھر وہاں سے وکیل صاحب کے ہاتھ میں آیا، اور وکیل صاحب جو بھی کرے، جو بھی چلائے، جو بھی طریقہ اپنائے، تو مولانی مشکل کشا کے بتائے ہوئے راستے کا۔ اب وکیل صاحب جو کچھ کرے اس کے خلاف بولنے والا، مولانی مشکل کشا کے خلاف بولنے والا، تو یہ خانقاہ، یہ سلسلہ، یہ ذکراں، یہ اوراد، یہ خلیفے، یہ مریداں، یہ مرشداں، سب مولانی مشکل کشا کے۔ اب مجھے پوچھیں گے کیا اگر بھائی تمہیں بتے سامان سے غوث پاک کا سلسلہ بولتے تھے، مولانا علی کا بول رہے کو علی بھائی تمہیں بھی میرے سے شکایت ہے، کلیریفیکیشن سن لو۔ غوث پاک کا جسم، غوث پاک کا نور، غوث پاک کا علم، غوث پاک کی روحانی طاقت، سب مولا علی کا صدقہ، مولا علی کی دین، مولا علی کی مدد۔ تو یہ مریداں، یہ سلسلہ، یہ خانقاہ، یہ ذکراں، یہ خلیفے سب مولا علی کے۔ تو ہمارے میں مولا علی کی صحیح وفاداری ہے کہ تو ہمیں مولا علی کے بتائے ہوئے راستے کو چلنا اور عمل کرنا، صرف باتاں کرنا، ذکراں کرنا، دعوتاں کھا لینا، چل جانا، اسٹیج پہ کھانا ڈالنا، میں بڑا خلیفہ، میں بڑا شیخ ہے، میں بڑا مرشد ہے، مجھے بڑا بنانا، مجھے کون بھی بڑا بنائے نہیں، ایسی شکایتاں، ایسے خلیفہ میں بہت تھیں۔ اور ہمارے میں پہلی بات مولا علی کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چل رہی، ہمیں چل رہی تو ذکراں کرتی، نمازاں پڑھتی، بس مریداں بناتی، چلے جاتی، ہوگا، یہاں کوئی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ مولا علی مشکل کشا یتیموں کی مدد کرنے والے، اسیروں کی مدد کرنے والے، بیواؤں کی مدد کرنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، اور عیبوں کو چھپانے والے، گناہوں پر پردہ ڈالنے والے، اور اپنی پیٹھ کو خلافت کے دور میں راتوں کو نہیں سوتے تھے۔ بوجھ، اناج کا بوجھ دیکھا، وہ ضرور لگو، جس گھروں میں اناج نہیں ہے، جو بھوکے سے نہیں، ان کو دیتے تھے رات بھر انہوں ایسا کرتے، پھر دن میں وہ خلافت کی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں۔ تو مولانا مشکل کشا صرف عبادت نہیں کرے، صرف ذکرہ نہیں کرے، صرف تبلیغ نہیں کرے، اللہ کے مخلوق کی خدمت بھی کرے۔ تو اس سلسلے میں، اس طریقے میں وکیل صاحب بھی وہ طریقہ اپنائے۔ میں بھی وکیل صاحب کو تقریباً 18-20 سال سے دیکھ رہا ہوں، صرف انہیں عبادت نہیں کرے، ذکرہ نہیں کرے، مریداں نہیں بنائے، خانقاہ نہیں بنائے، سلسلہ نہیں چلائے، ساتھ میں بہت بھی ایسی مدد کری ان لوگوں کی، مریدوں کی اور غیر مریدوں کی، وہ زیادہ صبح ہے آتی ہے۔ تو وکیل صاحب کے راستے کو ہمیں چلنا، ایک دوسرے کی درد دکھ پہچاننا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور بولے تو بھی بہت ہے، زیادہ بولنے کی ایسے میں ٹائم نہیں لیتا، وقت بہت کم ہے۔ تو مولانا مشکل کشا کا سلسلہ، یا خانقاہ، ذکراں، یا اوراد، یا خلیفے، مریدہ، پوری دنیا کی جنت و سب کچھ مولانا مشکل کشا کا۔ تو ہمارے غوث پاک کا جو کچھ بھی ہے، غوث پاک کا جسم، ان کا نور، ان کی روحانی طاقت، ان کی دولت، ان کے کرامت سب مولا علی کے صدقے میں ملی ہے۔ تو غوث پاک جو پرچم اٹھا کے جو لہرا ہے، وہ قیامت تک پرچم جو ہے وہ مولا علی مشکل کشا کا پرچم ہو، غوث پاک کا نہیں۔ اور یہ پرچم جو رسول اللہ مولا علی کو دیے، وہ پرچم ہمارے آقا، ہمارا مولا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ پرچم آیا، تو وہاں سے آتا 12 اماموں تک آیا، وہاں سے غوث پاک کے ہاتھ میں آیا۔ وہی پرچم ہمارے وکیل صاحب لے کے لہرائے سو، وہی پرچم آج تقریباً 30 سے 5 یا 40 خانقاہوں میں لہرا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وکیل ہند، وکیل ہند۔ تو ہمیں وکیل صاحب جو کچھ بھی سکھائے، جو کچھ بھی طریقے کو عمل کرے، اسے فالو کرے، تو ہمیں بہت جلدی مولا علی مشکل کشا کی در تک پہنچ جاتی۔ اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، بس خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم الرسالۃ والحکمہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے میں سب خانقاہوں سے آئے ہوئے خلیفہ اور مریدوں کو
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ ताकि उन्हें यहाँ गुलामी का सुख लिए हैं, इसलिए इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सब अपने अपने अंदाज से बयान और तकरीर और शिकायत किए। शिकायतों से कुछ भी नहीं चलता, मगर जिम्मेदारी से चलता है, जिम्मेदारी निभाना है। बोलो। उसके ऊपर अमल करना है। जिम्मेदारी जिनकी है खलीफों की और मुरीदों को लेकर उस जिम्मेदारी निभाना है। इंशाअल्लाह सब खलीफों को यह क़ुव्वत और ताकत हमारे पीर मुर्शिद की सिला पर चलने वाले बन गए तो इंशाअल्लाह सब खालकों में ये सुलूक हो जाएगा। और बात यह है कि जब भी कहाँ भी खानकों में जाते हैं, खलीफों की जो महफिल में बैठते हैं, तो अदब का मकाम सीखना है हर खलीफों में और मुरीदों में। ये पहले खुलूस होना चाहिए। मैं इसलिए सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि सब खलीफों को अल्लाह ताला ने हमारे पीर और मुर्शिद के वसीले से वो ढंग आ जाए तो बेहतर है। इंशाअल्लाह हमारा खानखों में मस्जिद के ज़िक्रात तो होती है, खलीफे भी आते हैं, मुरीदीन भी आते हैं। मेरी दरख्वास्त ये है कि औरत को पर्दे के इंतजाम से आ जाए तो बेहतर है, वही मेरी दरख्वास्त है। और यहाँ पर जो बोल रहा है वो हर खानखों में भी औरत का पर्दे का इंतजाम हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तबलीग जमात की जो तकरीर होती है और हिंदुस्तान में होती है तो पहले पर्दे का इंतजाम किया जाता है। इसलिए कि ना बोलते हैं कि सुन्नियत के दायरे के अंदर पर्दा ही नहीं है, हमारे लिए कमी है। और इससे दरख्वास्त है मेरे पीर भाई और माए से दरख्वास्त है, खानखों की जिस जगह भी जाए तो पर्दे का इंतजाम से जाए, बेहतर से बेहतर होगा। और ये खानखा आते हैं हमारे पीर मुर्शिद का दरबार है, इस दरबार में आए तो अदब से आए और अदब से जाए और उनकी हाजत जो है इंशाअल्लाह पीर करम से पूरी हो जाती है और इधर उधर के भटकी हुए ख्यालों से तो दूर हो जाए। मजदूर का माहौल तो सबको मालूम है, पीर भाइयों की भी मालूम है, पीर भाइयों की भी मालूम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पीर मुर्शिद जो रास्ता दिखाई और हमारे पीर मुर्शिद के बताए रास्ते पर अमल करना ही जरूरी है। इतना कर लिए तो मुरीदीन पाक हो जाएंगे और खलीफे भी पाक हो जाएंगे। ज्यादा कहना नहीं चाहता, इतना बोल कर मैं मेरा काम को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बोलो बैठ को बोलो जाबे नहीं। मुझे अब एक 15 दिन की बशारत सरकार ने आपको 11 से गए के बाद से हरियाणा के रूम है, तो रूम में दामन हरे दामन ही सरकार गादी के ऊपर बैठ कर ही तो सरकार हमारे तेरे तरफ उधर बैत दिलाने आओ सरकार की मदद होंगे आपको कहीं दस्तार कर को बैठी संजय बशारत मुर्शद भी बने मुठ रही थी। अब यह सरकार बयान करने में अब मुझे याद आ जैसो बहुत जज्बात करी ऐसा हरिया है। वो रूम का 4 दिवाला था मटोर की तीसरे ना वैसा दूसरा है खाली हरिया से सरकार गादी के ऊपर बैठते हैं, जज्बात करते होता जज्बात में बैठते हैं। सरकार हमारे खेड़े तरफ तैयार दिलाने आगे सरकार से बैठे अब 15 दिन में आज सुनिए फिर को बोल रही
मुझे तो बहुत परेशान आप तो बोलते रहते मुझे बात ज़्यादा भी बशारत अभी 5-10 मिनट इंशाल्लाह खाना गल रहा है उसके बाद हमारी मीटिंग जरा लंबी करेंगे इंशाल्लाह 5-10 मिनट के बाद अभी तुम्हें लेट आए अभी जल्दी आए नहीं मुरीद हाँ आए तो 8:30-9 बजे मैं क्या बोलूँ इसमें मुझे समझ नहीं आता। मेरे वकील हैं, जब भी मैं याद करी मेरे हाथ में मेरे दिल में जब भी मेरे वकील हैं का मैं नाम लेती हूँ मुझे उसका हल मिलकर मिलता। और क्या तो मेरे वास्ते नहीं तो मैं दूसरे के वास्ते मेरे वकील हिंद के पास दुआ करी तो उनकी शफायत होती। अब मैं जो भी पहले एक बार बोली थी मेरा भाई इतना बड़ा पीवट उसकी मैं सब पीने का छोड़ डाला कर को अब इतना बड़ा बीमार हो गए है उसके साथ मैं क्या भी बोल सकती नहीं। और क्या तो मैं वकील हिंद के पास एक दुआ करी जैसा उन्हें हॉस्पिटल गया वैसा फूल के सरकार घर का सरकार कर डालो बस मेरे सरकार उससे बड़ी और दुआ कोशिश भी नहीं कर को। उन्हें जैसा ऑपरेशन है जो भी है ऑपरेशन पेट में गड्ढा है कर को बोले ऑपरेशन कराना के उतने बड़े तवंगरा नहीं उन्होंने वो जो भी नहीं सरकार उनको घर तक का सही सलामत से लगा को पहुंचा दलो कर को बोली। मेरे वकील हिंद के साथ में तहज्जुद की नमाज पढ़ी नमाज के साथ मेरे वकील हिंद मेरे सरकार के साथ में बात रखी तो दूसरे दिन ही हमारे शोहर हॉस्पिटल को गए थे वहाँ से डिस्चार्ज कर को कैबिने है 3 महीने के वास्ते गोलियां देती कर भेजे। मैं बोलती हूँ कि उसे बीमारी जो भी है मेरे सरकार मेरे वकील हिंद मेरे भाई की बीमारी दूर कर को से अच्छा कर डालेंगे। मैं अब हमारे ये सरकार आने में भी इनके सामने मैं बोली थी मेरे भाई के वास्ते दुआ करो कर को उन्हें दुआ करी हम न मालूम लेकिन होता है तो मेरे भाई की बीमारी दूर हो जाए। और मैं जो भी मैं मांगती हूँ मेरे सरकार के पास जो भी मिलता है हमारी जितनी गरीब है हमें बहुत गरीबी से आए लेकिन अब जो भी है तो पहले उनका दिया भीख हमारे वास्ते जितना भी बोली तो भी मैं कम मेरे सरकार के सलामत। शुक्रिया इंशाल्लाह आज की मीटिंग का उसका बॉटम लाइन आखिरी पॉइंट खलीफों में इख्तलाफ नहीं रहना खलीफों में इख्तलाफ नहीं रहना जो भी चीज़ है खलीफे बैठो तो खलीफे आपस में मशवरा करो फोन करो बुलाओ बैठ को इंशाल्लाह जो भी इख्तलाफ है तो इंशाल्लाह उसे हल करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो खलीफे खाली आपको जिक्र करा को भागने का नहीं खलीफे को चाहिए कि वो आकर ज़्यादा से ज़्यादा खानखा और तबलीग करे और सिलसिले का काम ज़्यादा से ज़्यादा करना। ये बहुत से खलीफे ही खाली खिलाफत ले लेती मुशरा बन जाती बैठ जाती खाली स्टोरियाँ क्या अगर बोलो तो हम इधर जाती हैं उधर जाती सिलसिले में देख लो मैं क्या भी चुपके कान में होना पहले क्या भी कुनिगल से आया नहीं मुझे कौन क्या कर रही कितना कर रही किस्सा कर रही कितना कर रही सब मालूम हो रहा है। इंशाल्लाह फिर भी कि बोलना नहीं फिर भी सुधर जाओ अब फिर नामा बोल को बोले बेजार होता है इनको भगाए उनको भगाए ये करे वो करे तो इंशाल्लाह बैठो आगो जिक्र को ज़रूरी यहाँ के जो मंदूर के जो खलीफ हैं अकबाल भैया इनसे भी आप तो कहेंगे फिर भी चले गए कहता बोले तो महीने में दो घंटे महीने में दूसरे महीने कम से कम 2 महीने 2.5 महीना हुआ मीटिंग होगा। अब ज़रूरी खलीफे को जुद्दे की बहाने दुनिया के बहाने बीमार हूँ ये हूँ वो हूँ अब हमें ले लेगा को मजदूर में कहीं को लिखे ऐसा तुम ना ज़ियारत भी हो जाती है इनका तबरुक भी मिल जाता है क्या कि हम ना एक जिक्र भी मिल जाता है सब मिल जाता। अब घोड़े गिरे बाबू नहीं आए बहुत से यहाँ के हनीफ नहीं आए बहुत से खलीफे नहीं आए बहुत से बातें करने की कोशिश करके ऐसा करके उन खलीफे में हमें सब गुलामा समझी बेशक हमें गुलामा मगर तुम्हारे नहीं हमें गौसे पाक के गुलाम इनको सभी देखो हज़ारों लाखों खर्चा कर को सभी कर को
हमें गए, अब पंचवल्ली में खानखा बन रही, लाखों रुपए खर्च कर रही, पंचवल्ली में जो इंचार्ज ले गई उन्होंने खुद आगे बढ़ को काम नहीं करे। अब कर रही कौन? वहाँ से हमारे नौमान हजरत कर रही, जद्दोजहद मेहनत कर रही। अब जो आने वाले जो उनके जाको जद्दोजहद कर को इन्हों करने वाले, और जितने भी वहाँ के जिम्मेदार खलीफे हैं जरूरी उनको साथ देना। अब जितने भी यहाँ ही उनको जरा जाको जरा समझाना, साथ देना। क्या भी खानखा हमारी जेब में रखलेट नहीं आ रही, क्या भी हमारे किले जब बन जाता है उन वहाँ करा बैठ को हम बड़े बनने की कोशिश करें। सिलसिले का काम कैसा है, मजदूर में भी ऐसा, मंडिया में भी ऐसा, सब जगह ऐसा हो रहा है। तो जरूरी बराबर बराबर खलीफे की खिदमत, जो खलीफा साथ दे रहा है उसकी खिदमत करो, खिदमत करो, उसे सपोर्ट करो इंशाल्लाह करो। ये सब चीज़ें खानखा किसके वास्ते? मुरीदान के वास्ते, मुरीदान के वास्ते इस्तेमाल करें। खानखा की निस्बत ना खानखा का काम नहीं करे, उसे सीधा देख बने। अब देखो 3-3.5 लाख खर्चा कर को टॉयलेटा बने, मगर यहाँ के मुरीदा क्या कर फिक्र भी नहीं, यहाँ के खलीफा को फिक्र भी नहीं। आता है बहुत बड़ा काम, मैं जिक्र करा तो मैं कट्टे बंतु करूँ भाग जाता, ना उसे क्लीन कराना, ना उसे देखभाल ही करना। लाखों रुपए किसके की बाप का माल आया, कौन की आ रहा है कौन की जा रहा है किसे भी मालूम नहीं। जहाँ ऐसे पेट भरे इंसान है सो एक आते सो एक 50-60 मुरीदा, अब उसके वास्ते एक जने को ले लगा को वहाँ एक खादिम को रखे। अब खादिम को भी देखने के वास्ते हमें देख खादिम है नहीं है, किधर है क्या है, जरा उसे जिम्मेदारी उठा को उसे काम करा। तुम्हें बहुत करोड़पतियां, तुम्हें अरबपतियां मालूम, फिर भी क्या है कर को बोले तो जरा काम काज उसे हाथ से कराना की कर बोले तो जो भी नौकरी को आता उन्हें करता नहीं, उन्हें आराम की के वास्ते आता। तो जरूरी यहाँ के जो खलीफे हैं जिम्मेदारी उठाओ, जिम्मेदारी उठा को जो खानखा के चीज़ा ही, खानखा की जगह ही, खानखा के सामान ही, जरा उसे तुम्हें तुम्हारे इख्तियार में रखो, तुम्हारे नजर में रखो। तुम्हारे चीज़ा को बोले तो एक इंच भी हलना को बोले तो तुम्हें हलाते नहीं, एक दमड़ी भी निकलना तो पूरी चमड़ी निकली तो तुम्हारी दमड़ी निकलती। खानखा का है, तुम ना फिक्र भी नहीं है, एक ट्यूबलाइट गया तो ट्यूबलाइट ले लेगा नहीं। ये सब जरा हमारे मजदूर के जो खलीफे हैं जिम्मेदार हैं, तुम्हें नहीं सीखे तो पुराने जो भागे उनसे भी बदतर होकर जागते हैं। उसके वास्ते जरा फिक्र करो, जरा खानखा की जो भी चीज़ा ही उसकी जिम्मेदारी, दफ़ा ही, फिरके ये ही लाइटा ये जो तो ये सभी देखभाली कर को जरा आको जरा ये करो। अब सब जने जाको एक जने को रोक डालो, कौन तो भी एक जिम्मेदार बनो, उसके अंदर वो 5 खलीफे ही तुम्हारे, वो 5 खलीफे भी जिम्मेदारी उठा को बैठ को डिसाइड कर को क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा, जरा देख को खानखा की फिक्र करो। इंशाल्लाह पंचवल्ली का खानखा भी बड़ी मेहनत बड़ी मशक्क़त से हमारे नौमान हजरत बड़ी मेहनत हो, वो क्या भी मामूली चीज़ नहीं है देता बनने का, पैसे डाला थी मगर जाको खड़को बनना बड़ी बड़ी चीज़ हो। इंशाल्लाह गौसे पाक उनको अल्लाह ताला और गौसे पाक के सदक़े में अल्लाह ताला उनकी उम्र की दराज़ी अता फरमाए और अल्लाह ताला ऐसे खलीफे की, अब इनके जूतियाँ उठा को पिले तो तुम ना तरबियत मिली। 20-20 साल का खलीफा, मैं 96 का खलीफा, 94 का खलीफा, क्या रे बनिया कम से कम 20 साल जगह को एक पत्थर ले लगा को डालने वाला है। क्या को तो वकील साहब ही, वकील साहब के बच्चे ही को डालती हमें आको हलाक देंगे। वही सागर को बोले तो हम ना बेंगलुरु में दुनिया के मुरीदा ही, वारम में 2-2 4-4 बनती, हमने जरूरत नहीं ले लगा को इधर डाल ले को इधर कर ले रहने का। क्या की मोहब्बत थी, इधर ले लगा को वकील साहब को मतफन करे उसके वास्ते में इज्जत करे। ये ऐसा करने का रहा तो फायदा क्या है, तुम ना ले लगा को ये सब चीज़ें बना को देने की। कैसा थे तुम कई को बोले तो बोलती ना, वो हमें एक सुअर को पाले तो क्या होता है, बिरयानी खिलाओ, पिश्ते खिलाओ, क्या भी खिलाओ, फिर नाला देखा तो जाको लिटता चल। ऐसे बनने की कोशिश को छोड़ो, जो थे सुवरान चले गए, अब इंसाना बनने की कोशिश करो, जरा खिदमत करो। जैसे देखो अब इन्हों सभी नए खलीफे, नए तुम्हारे से नए मुरीदा, फिर भी खानखा की निस्बत हमारे गनी मुर्शद होंगे, ये हुजूर के सईद के होंगे। अब जितने भी मुरीदा बन रही तुम ना हुजूर की तरफ के बन रही। अब मजदूर के अंदर ऐसे चीज़ें ही, वकील साहब का खाए, वकील साहब का जिए, वकील साहब को दिखाए, सब चीज़ देखा है। आज मजदूर के अंदर पूरा पीते पानी में क्या कि हलाती को बोल को हला डाल को, आज मुरीदा भी नहीं बन रही। आको तुम्हें नहीं आ रही ना, मैं आको क्या करूँ, आप में बकले खड़ू, 2 मुरीदा नहीं बनते, 2 साल में बराबर 2 मुरीदा नहीं बना मजदूर वाले। अब मैं क्या करूँ, आपको दूसरी जगह में गया तो 50-60 मुरीदा होते, अब नहीं आ रही को बोले तो ना तुम्हें तबलीग कर रही मजदूर वाले, ना तुम्हें जाको बराबर बोल रही। अब आको जुम्मा का आको खड़ो करके बोले तो फायदा क्या है। हम ना तभी जरा फायदे का सोचते, हमें दीन का सोच रही। हमें आए तो भी 2-3-4 हज़ार खर्चा कर ले, हमने 1-4 मुरीदा बने तो हमें जरूरत है, नहीं तो क्या हमें इन्हों कभी भी बुलाते 24 घंटे हुजूर वाले हैं, दूसरे खलीफे ही इंशाल्लाह वहाँ जाकर काम करती। तुम्हें भी मजदूर के खलीफे ही इंशाल्लाह बराबर सिलसिला के वास्ते फैलाओ, सिलसिले के ये छोड़ो। अब इनका सिलसिला उनका सिलसिला, गौसे पाक का सिलसिला, गौसे पाक के दरबार का डायरेक्ट सिलसिला, गौसे पाक के दरबार का डायरेक्ट सिलसिला। जो भी हमारे मददा में ही वो सब इमामा के मदद, कुरान और हदीस से साबित। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बीमार पड़े, हदीस कुदसी है, हदीस
सियासता की हदीस मौजूद है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बीमारी, बुखार है, बहुत बुखार है, सारे सहाबा है, क्या था वो ज़माने के अंदर, नियाजा करते, दुआएं करते, कुरान पढ़ते, नमाज पढ़ते, रोज़ा रखते, सदका दिए। सरकार को चाहने वाले बहुत जने थे, सब चीज़ करें, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखार कम नहीं। क्या ये हिकमत चाहते तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी बुखार कम कर सकते थे, मगर ये हमारे सर के बेवकूफ़ों को दिखाना था कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, कई को बीमार हुए। बीमारी बेशक सरकार को नहीं आती, फिर भी एक हिकमत थी, एक शान थी, अहले बैत की शान दिखाना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बीमार हैं, एक सहाबी आ रहा बोल रहा मैं रोजे रखा, 2 रोजे रखा, एक सहाबी आया मैं सदका दिया, मैं 25 ऊँटा, मैं 50 ऊँटा, मैं क्या की सदका दिया, मैं नमाज पढ़ा, मैं हज कर क्या के मैं उम्रे कराया, मैं हज को क्या की कर लूँ, मैं हर सहाबी आपको मैं इतने कुरान पढ़ा। क्या सरकार न्याज करना एक इस्लाम के अंदर सुन्नत है और न्याज करे, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बुखार कम नहीं हो रही। बहुत न्याजा नवाजा के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती जाओ मेरे अली को बुला लेगा, जाओ मेरे अली को बुला लेगा। मौला अली को बुलाती, अपना मौला अली का हाथ उठाती, अपने हाथ से पकड़ती, अपने सीने के ऊपर सरकार मदीना फेरती, सीने के ऊपर फेरते ही उठ को बैठ जाती सरकार मदीना। सारे सहाबा को बुलाती, हाथ पकड़ को पूछती क्या मुझे बुखार है, क्या मुझे बुखार थी, क्या मुझे बुखार है। पूरे सहाबा देखती, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आंख ठंडा नॉर्मल हो गया, पूरे परेशान। सरकार मदीना नारे तकबीर, नारे रिसालत, अली जो है नारे हैदरी, मेरा अली हर बीमारी को शफा करने वाला। अब जब अली का नाम लेना भी बड़ी चीज है, इबादत है। जब अली का हाथ, यदुल्ला का हाथ जब सरकार मदीना के जिस्म के ऊपर पड़ा तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बुखार कम हो गई। और दिखाए क्या समा के दिन हुज्जत हो जाना कि जब भी मैं बीमार, सरकार बीमार, मैं मौला अली का भी मौला, मैं अली का भी मौला, अगर मैं बीमार पड़ूं तो मैं अली के जरिए से मैं मेरी बीमारी दूर करता हूँ। आए ईमान वालों, आए मोमिनो, तुम भी अगर कोई भी बीमार पड़ो तो तुम इनसे मदद तलब करो, इन्हीं से बीमारी की। ये अपना सरकार दो आलम। फिर सलमान फारसी जरा ऐसे थे जो बड़े आशिक थे, जाको पूछे या मौला अली मुश्किल कुशा, हमने कुरान पढ़ी, नमाज पढ़ी, फलां पढ़ी, ये पढ़ी, दुआएं पढ़ी, आपकी बुखार कम नहीं, आपने क्या कहा जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए। तो मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं मैंने मेरे अइम्मा अहले बैत का नाम लिया, मैंने अइम्मा अहले बैत का नाम लिया, मेरी औलादों का नाम लिया, जो औलाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम से लेकर मेहदी अलैहिस्सलाम तक मैंने लिया, और मैंने इनके ऊपर दम किया तो सरकार मदीना खुश होकर बैठ गए। तो ये सुन्नत रसूल है। ये आकर कोई हमारे तुम्हारे सर के बनाई नहीं इमामा की मदद, इमाम की से मदद हर गौस ने की है। इमाम गौस आजम दस्तगीर का शिजरा, एक शिजरा ऐसा है कि गौस आजम दस्तगीर उनके खलीफे अब्दुल रज़्ज़ाक़ जिलानी फरमाते हैं कि मेरे बाप को मेरा फिरका, जो गौस आजम को मेरा फिरका, हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, ये फिरका आकर उनसे मुझे मेरे बाप को डायरेक्ट मिला, डायरेक्ट गौसे पाक को इन अइम्मा जरा लोग ही इमामा की मदद नहीं थी ना वकील साहब के जमाने में, ये नहीं थी ना। देखो एक चीज बोल दूं, अब अलहम का सूरा सब जने पढ़ती हैं, सब जने पूरे जने नमाजियां, पूरे जने जिंदगी भर नमाज पढ़े। आज मैं साबित कर दूं अलहम का सूरा को जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है वो सब्बे मसानी करके बोले तो 7 सूरों वाली आयत, कहते 7 आयतों वाला सूरा, 7 आयतों वाला सूरा। कुरान उठाओ, इधर ही कुरान है, कुरान के फर्स्ट पेज में अलहम का सूरा है, उठा को देखो उधर सब्बे मसानी लिखो, सब्बे मसानी कर बोले तो 7 आयतों वाला सूरा। अब 7 आयतों वाला सूरा शुरू होता सो कहां से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से नहीं शुरू होता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहली आयत अलहम के सूरे की, अलहम के सूरे की पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दूसरी आयत। मगर अब तक भी जो पढ़े सब जने अल फातिहा को तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़े। ये हदीस, ये अल्लाह ताला का हुक्म। अब देखो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ला सलाती तुम्हारी नमाज होगी नहीं जब तक सूरह फातिहा नहीं पढ़ोगे, जब तक सूरह फातिहा नहीं पढ़ते तुम्हारी नमाज होगी ही नहीं। अब सूरह फातिहा में तुम्हें एक आयत छोड़े तो तुम्हारी नमाज हुई, तुम्हारी नमाज हुई क्या? जब तक बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा के साथ मिलाकर नहीं पढ़ते, 7 आयतें नहीं होती, नमाज नहीं पढ़ते। अब तुम्हें बोलो मुझे हमें 32 साल से बिस्मिल्लाह मिला कुछ नहीं पढ़ते, आज नया चीज करो,
اب इतने सालों से जो पढ़ते थे वो तुमना मालूम नहीं था, अल्लाह ताला माफ करे। अब जब मालूम होगा तुमना जरूरी के सूरह फातिहा के साथ जब भी पढ़े अलहम का शुरू करने से पहले ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिलाकर पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिला को पढ़े तो सारे 7 आयता होते हैं। क्या हजरत यहाँ आलिम भी बैठी, इसी दुनिया के अंदर यहाँ हमारे हाफिज साहब भी बैठी, दुनिया के अंदर कहाँ भी जाको पूछ लो, सब्बे मसानी 7 आयता। अब ये 7 आयता में 6 आयता पढ़े तुम्हारी पूरी जिंदगी, अब तुम्हारी नमाजा होती। अल्लाह ताला माफ करे, फिर भी अब मालूम नहीं था अल्लाह ताला माफ करने वाला, फिर भी जरूरी खानखा में आई तो ये सब जरूरी है कि ये सब चीज़ा माने। अब ये चीज़ हमें बताए, अब ये नहीं बोलना कि तुम्हें वकील साहब के ज़माने में नहीं बोले ना वकील साहब बोले, हमारे शेख साहब नहीं बोले ना, जो थी वो चीज़ वो नहीं बोले, नहीं करे नहीं। जो शरीयत के अंदर है, सरकार मदीना जब बोल डाले खुदा की कसम उन्होंने बोल डाले, खुदा की कसम उनका हुक्म है, ज़रे आदमिया के सामने से गुजर के ज़रे आदमिया के सामने से नहीं गुजरते। तो हमें चाहिए कि अहले बैत का जो मदद है वो हमें अहले बैत की मदद है, उसके अंदर गौसे आज़म की मदद है, मशाइख इकराम की मदद है, हमारे पीर व मुर्शिद की मदद है। हमें वो सिलसिले के अंदर जो भी जितने भी खानखाएँ आई, जो खानखाएँ खुल रही, ज़रूरी है कि वो आकर जो खानखा के अंदर जो दिया गया वो ज़रूरी वो पढ़े। नहीं मैं वोच पढ़ता हूँ, वकील साहब लाए को वोच पढ़ती ये पढ़ती, वो सभी नहीं चलता। ज़रूरी है जो सिलसिले जिलानी के अंदर जो हुक्म है वो तुमना कार्बन करना, तुम्हारा हुक्म कार्बन करना, ये ज़रूरी है कि वो पढ़ना। जो भी हमारे जो हमने जो जिक्रात हैं इंशाल्लाह उसके अंदर भी थोड़ी इंशाल्लाह आइंदा थोड़े तब्दील है, थोड़ा अभी जिक्रात उसके अंदर अभी आने वाले हैं। परसों भी कल भी तो बगदाद से शेख साहब आए थे, बगदाद के जो सज्जादे थे शेख साहब आए थे। अब जैसा वो उनको होता है वैसा उन्होंने बोलते इंशाल्लाह वो आइंदा में बोल दो इंशाल्लाह, क्योंकि ये नहीं कि आकर वही जिक्र करना ज़रूरी है कि कुरान मजीद में जो आगे बढ़ने का जो तकलीफें दूने का जरूर जिक्र करना। इंशाल्लाह ये मदद आप तलब करो। दूसरे खानखाया में मैं येज करा दूँ तो वज करा दूँ। सबसे दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल ये 12 इमाम, सबसे पावरफुल 12 इमाम तुम्हें जो भी हैं इनके गुलामा। अब तुम जब पूरी जिंदगी गुलामा को पुकारे, तुमने परेशानी नहीं थी, तुम्हें गुलामा को पुकारी, उनकी दर के भिखारियों को परेशानी तुमना परेशानी थी। अब जब तुम इमामा में पुकारे, जब तुम इमामा को पुकारे तुमना परेशानी आ गई, तुमना क्या होगा, परेशानी आ गई। कैसा होता, खुदा की कसम हकीकत में पुकारना इनको पुकारे तो गौसे आजम खुश, इनको पुकारे तो ख्वाजा खुश, इनको पुकारे तो सारी दुनिया खुश। पूरे जितने भी बुजुर्गान दीन बुजुर्ग बनना तो ये 12 इमाम को पुकारना। फातिमुत ज़हरा को ये भी बहुत सुनिया में, औरत का नाम नहीं लेना क्या की ख्याल आता। अरे औरत का नाम नहीं लेना जिक्रा में क्या की ख्याल आता है। पूरे औरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेती उनको ख्याल नहीं आता क्या, मर्द का नाम लेती उनको ख्याल नहीं आता क्या, मौला अली का नाम लेते उनको ख्याल नहीं आता क्या। ये जरा फिक्र करो, औरत का नाम लिए तो तुमना ख्याल आ जाता, औरत मर्द बने का ख्याल लिए तो अपनी फिक्र करो। फातिमुत ज़हरा जन्नत की माँ है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाई वो मेरी माँ है। तुम्हें कैसे जालिम की औलाद आ रहेगा कि फातिमुत ज़हरा का नाम लिए तो तुम ना ख्याल में क्या क्या आता है। अब तुम्हें वैसे न तो तुम्हारे अम्मा को देखे तो तुम्हारे ख्याल में क्या आता है, वैसे बदबख्त तुम्हारे ख्याल निकालो। फातिमुत ज़हरा का जो जिक्र है वो ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं अगर मुझे खराबतदार की आयत है, जब मन खराबत कौन अपने खराबतदार, अल्लाह ताला खुद फरमाया कि फातिमा का बाप, फातिमा के बेटे, फातिमा का शौहर। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला जब निस्बत जोड़ता है तो फातिमा से मोहम्मद की निस्बत जोड़ता है, फातिमा से हसनैन की निस्बत जोड़ता है, फातिमा से अली की निस्बत जोड़ता है, क्योंकि ये ऐसी वाहिद शख्सियत है जो कायनात के अंदर इनसे बढ़कर कोई नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फातिमा ज़हरा, ऐ फातिमा तुम मेरे से 3 दर्जों में बड़ी हो, तुम मेरे 3 दर्जों में तुम मेरे मुकाम से बड़ी हो। सारे सहाबी सब पूछते या रसूलल्लाह आप तो सैयदुल मुरसलीन हैं, सब चीज़ हैं, मगर फातिमा ज़हरा कैसे हो 3 चीज़ों में बड़ी। जैसा उसका बाप है किसी का बाप नहीं है, जैसा फातिमा ज़हरा का बाप है किसी का बाप नहीं, जैसे उनकी औलाद है किसी की औलाद नहीं, जैसा उनका शौहर है किसी का शौहर नहीं। अल्लाह की कसम ये वाहिद ऐसी शख्सियत है, क्योंकि हमारे सिलसिले में औरत ज्यादा आती हैं तो चाहिए कि उनको फातिमा ज़हरा के तरीके पर चला, क्योंकि फातिमा ज़हरा के तरीके पर चला। अगर इनको छोड़ दिया तो कौन सी अम्मा के तरीके पर चलती, किसकी अम्मा के तरीके पर चलती, काली माँ के,
کیونکہ سب سے بڑی ماؤں کی ماں فاطمہ، اس کا نام دو ہمنا نجات ہے، ہماری اولادوں کی بھی نجات ہے. یہ اختلاف نہیں لانا کہ ہم نہ خیال کیا کیا. قرآن میں مریم کا نام ہے، تب بولا لو اللہ کو قرآن میں سے مریم کا نام نکال دی. کیا قرآن میں سے حضرت مریم کا نام نکال سکتے ہیں؟ حضرت حاجرہ ہیں، حضرت سارہ ہے، حضرت عائشہ ہے. یہ سب چیزیں کوئی کیا خیال آتا ہے اگر وہ بولے تو چھوڑنے ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بابزرگ ہستیاں ہیں، جب ان کا نام لینا عبادت ہے، ان کا نام لینا عبادت ہے. جب آدم علیہ السلام کو جب ان کی ماں، جب ہمارے حضرت ماں حوا حلال کب ہوئی کر کے بولے تو جب تک سلامتی محمد و آل محمد کے اوپر سلامتی نہیں بھیجے، درود نہیں بھیجے، تب تک حضرت حوا علیہ السلام ہمارے اوپر حلال نہیں ہوا، حضرت آدم کے اوپر حلال نہیں ہوا. تو یہ درود کے اندر ہیں کون؟ یہ پنجتن پاک. درود کے اندر ہیں کون؟ یہ پنجتن پاک ہیں. جب تک ان کا نام نہیں لیتے ہمارا عقیدہ سدھرتا بھی نہیں اور ہمیں اچھے ہوتے بھی نہیں. تو ضروری ہے انشاءاللہ. تیار ہو گیا، کھانا بھی تیار، بھوکا بھی لگ رہی انشاءاللہ. ابھی ذرا لیٹ کرے، اس کے بعد انہوں لیٹ پکائے گا. دیکھو آدمیوں کو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول عطا فرمائے. اور انشاءاللہ 11، 12، 13 کو انشاءاللہ پنچولی کی خانقاہ اس کی اوپننگ ہے. اس کے بعد سولیہ کی خانقاہ، منگلور کے اندر سولیہ کی خانقاہ ہے، اس کی اوپننگ ہے. اس کے بعد ہمیں تھوڑا ذرا درگاہیں کا غلال، کاسرگوڑ، ایم ماڑ، ابھی ہمارے خلیفہ کانگا ہم ڈالے جاتے ہیں انشاءاللہ. وہاں سے پورا وہ 3 دن کا دورہ ہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار. اور ضروری تمہیں درگاہیں کو آؤ نہیں آؤ، مگر جو سولیہ کا خانقاہ ہے، پنچولی کا خانقاہ ہے، جتنے بھی ہمارے اطراف کے حصول کے پورے خلیفے ہیں، سارے مریدوں کو لے کر پنچولی کے پاس آنا، سارے مریدوں کو لے کر پنچولی کو آنا اور سولیہ کو بھی آنا انشاءاللہ. ضروری ان کے گاڑیاں میں انشاءاللہ تمہیں تیار رکھو. اس کے بعد کیسا ہے پروگرام؟ ہمارا پروگرام ہمیں کر لے جاتے ہیں انشاءاللہ. مدور سے بھی ہے، مدور سے بھی جو آنے والے ہیں وہ بھی آرام سے انہوں کیسا دیں، ان کے سواریاں سے انہوں خود آ سکتے ہیں. منڈیا ہے، منڈیا سے خود ان کے سواریاں میں آؤ، کیونکہ اگر بولے تو سب کچھ اپنے رہنے نہیں ہوتا. ہمیں آ رہی، ہمیں ایک بس کر لے، پورے بنگلور والے آ رہی انشاءاللہ، ہمیں ایک بس میں آ جاتی. باقی کے جتنے بھی خلیفہ ہیں، مریدہ ہیں انشاءاللہ 11، 12، 13 انشاءاللہ 11 تاریخ کو کوسی خانقاہ مرشد پنچولی خانقاہ، 11 تاریخ کو مغرب کو جمعہ کے دن پنچولی کی خانقاہ کی اوپننگ ہے. ہفتے کے دن سولیہ کی خانقاہ کی اوپننگ ہے. برابر ہے. ہفتے کے دن سولیہ کی خانقاہ، 2 دن 2 خانقاہ ہیں انشاءاللہ. سارے جتنے بھی ضروری ہے کہ حصول کے اطراف کے جتنے بھی خلیفے ہیں ان کے مریدان کو لے لگا کو انشاءاللہ ادھر ڈائریکٹ پہنچ گئے تو اچھا رہتا. اور جو بھی مدور کے ہیں، ہمارے بازو کے، منڈیا کے، ان کے سب ہی مریدہ انشاءاللہ ان کے سواریاں میں انہوں آنے کی کوشش کریں. کیونکہ ضروری یہ خالی آ کو بیٹھ جاؤ ادھر ہلاک ہو گئے تو کیا بھی تمہارا نہ سلسلہ بڑھ رہا ہے، نہ کام بڑھ رہا ہے، نہ مرید بناتے. تو انشاءاللہ آ کو ذرا دیکھو ہمارے بھائی کو ہم بھی کیسا کام کرتے ہیں سلسلے کے، ہمارے مرد بنے بھی کیسا کام کرتے ہیں. ان کے ٹانگا میں سے گھسے تو ذرا ہمنا بھی آتا ہے کہ سلسلے کے اندر مدور کے اندر کام کرنا سکھاتے. خالی بول لینا نہیں، ہمیں بہت بڑے مرید ہیں، ہمیں بہت وکیل صاحب کو بہت کرے گا، مگر آؤ آ کو ان کے کرامتاں بھی سنو. ان کے مدور عنصر والے، وہ کپا والے، وہ ہمارے نعمان حیرگی والے جتنے بھی خانقاہ ہیں، یہ مدور ایک چھوڑا وہ باقی کے جتنے بھی خانقاہ ہیں سبھی کرامتاں، سبھی ان کے کام، ہر چیز ہو رہی. مگر مدور کے تھوڑے بہت خلیفے، تھوڑے مریداں چھوڑ کو باقی کے پریشانی میں سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول عطا فرمائے. مما علیہ السلام کے لیے آئی آج